Hi guys, welcome to the channel. So this is your complete guide to Dubai. So this video is totally, so whatever I share is totally based on what I have experienced. So मैं वही बताऊंगा जो मैंने experience किया है. जरूरी नहीं कि वही सही हो, but जो जो मेरे को दिखा and what I experienced मैं वही mention करूंगा. So Dubai is one of the most famous tourist locations and it is a must visit place. And as a place which solely runs on tourism, there is a lot to explore and there is something for everybody. Place is beautiful, very diverse, and यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं and I'm sure you will love being there. It is a very common tourist place and you will see हर कोई ना कोई इंसान चेक इन डाल ही रहा होता है कि दुबई का या स्टोरीज डाल रहा होता है and tourist influx काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है but I'm sure it is a must visit place. So and I visited it last December and the tourist influx was pretty high. तो जब मैं गया था मुझे बताया गया था कि 15 लाख टूरिस्ट आ चुके हैं ऑलरेडी एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम देयर. So and so with all that mentioned, I'll straight jump to the crux and I'll not waste the time. And most of the videos will be so. I will be creating different videos and add it to one playlist on specific topics, so you don't have to watch entire long videos to search something particular. So you get the specific topic. उसके लिए मतलब I'll create videos on what mostly people look for या जो मैं search कर रहा था जब मैं trip plan कर रहा था. So this video is mostly about traveling. So I'll be dividing this video into four sections. First is what is the best time to go. Second is flights. Third is visa. And fourth is traveling in Dubai. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी जो प्रिटी कॉमन है, सब लोग बताते हैं एंड वो आपको इजीली मिल भी जाएंगी. So I'll mention them as well, but for now, I'll also mention I have what I have heard from people, yeah, what I've learned from people, and what I've experienced. The first part is what is the best time to travel. So the best time to travel is September to March. Although Dubai UAE is accessible to the tourists throughout the year, but September to March is the time जब थोड़ा सा weather starts getting better and tourists actually start coming in. And as you go towards December, so tourist influx is pretty high. And so this is also one tip. अगर आप December second half में अपना trip plan कर रहे हैं और you are willing to visit that time, तो अपना trip at least 2.5-3 months में advance plan करें because it starts getting crowded in December second half, which is good, but also starts getting expensive, so which is not very good for everybody. So guys, the next section is flights. Like what is the best way to book flights and when to book flights and how to book flights. I think it is pretty common. So अगर आपको best rates चाहिए, best prices चाहिए, first thing is you have to use what I would recommend is using Skyscanner. I think it is pretty common and आजकल सबको पता ही है Skyscanner का, so I will not waste much time on it. But yeah, here is what it looks like. You can visit the place, search a round trip or one-sided trip, whatever you want, and book your flights conveniently depending on आपको best price कहाँ से मिल रहा है. But I would still recommend, although it gives you best prices, I recommend booking it well in advance, especially अगर आप peak months में जा रहे हैं तो the best time you should book in advance. Next section is visa, and again this is not something which is very tedious to be taken care of या कुछ ज़्यादा difficult नहीं है इसमें करने के लिए, but I'll explain for somebody who's traveling जो कि पहली बार जा रहे हैं या जिन्हें फिर दुबई के वीज़ा का आइडिया नहीं है या ऑनलाइन पता नहीं लग पा रहा, तो मैंने मेक माई ट्रिप यूज़ किया था. आप भी सेम यूज़ कर सकते हो. यू कैन विजिट मेक माई ट्रिप, अप्लाई फॉर दुबई वीज़ा एंड फिल योर डिटेल्स. तो वो बेसिक डिटेल्स मांगेंगे जो कि हैं आपका पासपोर्ट डिटेल्स, फ्रंट एंड बैक फोटोज, आपकी फ़्लाइट, जाने की फ़्लाइट एंड व्हेन आर यू रिटर्निंग, डेट्स, एंड देन दे विल चार्ज यू अमाउंट. सो जो अमाउंट है विच इज़ समवेयर अराउंड 7,000 एंड वो हर जगह हर वेबसाइट पे इतना ही है, सेम चार्ज करते हैं. इफ़ यू फाइंड एनी चीप सोर्सेज, कहीं से बेटर प्राइस मिल रहा है तो आप वो भी कर सकते हो. तो एंड इट जनरली टेक्स 5 to 8 days, 5 से 8 दिन लगते हैं वीज़ा प्रोसेस होके आने में.
फॉर मी इट टुक 4 days एंड आफ्टर दैट आपको जो आपको मेल में या आपकी मेक माई ट्रिप आईडी में आपकी ऐप में आपको वीज़ा की ई कॉपी मिल जाएगी विच यू हैव टू डाउनलोड एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ बिकॉज वो ज़रूरत पड़ेगी एयरपोर्ट पे। लास्ट सेक्शन है एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको लोग नहीं बता पाएंगे या क्लियरली मेंशन नहीं है विच इज़ अबाउट ट्रैवलिंग इन दुबई। सो ट्रैवल उसके विद इन दुबई ट्रैवल करने के यू हैव 3 ऑप्शंस। सो दुबई हैज़ अ वेरी एक्सटेंसिव एंड वेरी वेल डेवलप्ड मेट्रो नेटवर्क। तो सो ये कुछ ऐसा इसका मेट्रो मैप है। इट इज़ फेयरली स्ट्रेट, बहुत एक इट्स अ स्ट्रेट सिटी। व्हेन यू लैंड एट द एयरपोर्ट आप एक ये नॉल कार्ड बोल के है, आप एक नॉल कार्ड बनवा सकते हो। आई रिकमेंड कि आप सिल्वर नॉल कार्ड बनवा लो। यू डोंट हैव टू गो फॉर गोल्ड बट अगेन इट्स योर चॉइस एंड उसको आप रिचार्ज करवा सकते हो। तो 2 ऑप्शंस हैं, इधर यू रिचार्ज सम मनी इन इट और यू कैन यूज अ 7 day पास। सो एक 7 day टूरिस्ट पास आता है। यू कैन यूज दिस नॉल कार्ड एवरीवेयर। आप कैब्स में पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो, जो लोकल बसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसमें यूज कर सकते हो एंड मेट्रो में भी यूज कर सकते हो। सो जो 7 डे नॉल पास है उसकी चार्जेस अराउंड 100 दिरम्स हैं। तो न्यू कार्ड है 6 दिरम्स एंड प्लस 100 दिरम्स फॉर 7 day नॉल पास। you can use it to travel in metro and bus, which I was told कि आप कितना भी ट्रैवल कर सकते हो विद दैट 7 day पास एंड बट एक लिमिटेशन है, यू कैन नॉट यूज इट इन मोनोरेल। तो मोनोरेल है जो पाम में चलती है, वहाँ पे आप 7 day पास नहीं यूज कर पाओगे। वहाँ पे इधर ही आप वहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी। बट माई रिकमेंडेशन इज टू नॉट गो फॉर 7 day पास। इंस्टेड आप एक छोटी अमाउंट रिचार्ज करवा लो and wherever and you can use that from going one major station to another major station, but वहाँ से उधर के again you will have to either walk a lot or use a cab। तो I think that is where जहाँ पे इसकी इतनी efficiency कम पड़ जाती है because you are not reaching your exact destination। आप वो जगह पहुँच नहीं रहे हो, आपको फिर भी कैब बुक करवानी पड़ रही है। तो in that case it is not very effective। मैं एक एग्जांपल दूंगा। सो मेरे को ग्लोबल विलेज जाना था एंड मैंने 7 day पास बनवा रखा था, तो मेरे को ग्लोबल विलेज जाना था एंड आई हैड टू टेक अ बस फ्रॉम मॉल ऑफ द एमिरेट्स। तो जब मैं वहाँ से बस लेने लगा मेरे पास सिल्वर कार्ड था बट मेरे को ऑल्दो मेरे को बोला था गया था कि 7 day पास पे आई कैन यूज पब्लिक बस, जो बस है उसमें भी इसको पास को यूज कर सकता हूँ। बट मेरे को मना कर दिया गया कि पास नहीं चलेगा एंड मेरे को सेपरेट टिकट बाय करनी ही पड़ेगी इसके लिए। एंड टिकट का प्राइस वॉज 30 दिरम्स एंड दैट टू उस दिन मेरे को ही बोला गया था कि बस बहुत क्राउडेड है एंड मेरे को खड़ा होकर जाना पड़ेगा विच इज़ फाइन। बट बाय द टाइम आई वेंट टू टेक अ टिकट बस निकल चुकी थी। सो आई हैड टू बुक अ कैब बिकॉज नेक्स्ट बस वॉज आफ्टर 30-40 मिनट्स। सो वी वर 2 people, तो 2 लोगों का 60 दिरम बैठ रहा था टोटल। सो इंस्टेड वी बुकड अ कैब एंड कैब बुक करके हमारा टोटल चार्जेस बने अराउंड 64 दिरम एंड वो भी इसलिए बने बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था एंड वेटिंग चार्जेस ज़्यादा उसके लगे, अदरवाइज 55 58 50 to 55 दिरम्स में मेरा हो जाता। तो आई थिंक इट केम आउट मोर कंफर्टेबल एंड चीपर देन द पब्लिक बस। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक 3-4 लोग हैं एक साथ, तो आई रिकमेंड कि आप कैब ज़्यादा प्रेफर करो मेट्रो से। इट विल बी मनी वाइज मोर एफिशिएंट एंड टाइम वाइज वेरी वेरी एफिशिएंट। अगर आप अकेले हैं तो डेफिनेटली कैब इज़ एन वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन। तो विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ कैब्स। कैब्स में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ईदर यू कैन यूज़ करीम ऐप जो उनकी लोकल ऐप है टू बुक टैक्सीज, अदर इज ऊबर एंड थर्ड ऑप्शन इज आप रोड साइड ऐसे कैब्स को हायर कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड और इफ यू सी एनी टैक्सी स्टैंडिंग विच इज नॉट ऑक्यूपाइड यू नीड टू गो एंड टॉक टू द ड्राइवर। आप जाके ड्राइवर से बात करें एंड वो आपको ले चलेगा। उबर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वहाँ पे, तो आई रिकमेंड कि अगर आप कोई इमरजेंसी है या वैसे नहीं मिल रही कैब तो ही आप यूज़ करें। अदरवाइज यू कैन गो फॉर करीम एंड बेस्ट इज टू हायर अ टैक्सी जो ऐसे सड़क के साइड पे खड़ी हैं।
तो बिकॉज सो डिफरेंस की जो करीम से आप बुक करवाते हो कैब, दे हैव, उनका कुछ इनिशियल चार्ज होता है कि जैसे कैब स्टार्ट होगी वो चार्जेस उतने लग जाएंगे। एंड सेम इज व्हेन यू बुक, जब आप कैब ऐसे रोड साइड से बुक करवाते हो, बट जब रोड साइड से आप खुद मैनुअली ऐसे हाथ करके बुक करवाते हो, उसके स्टार्टिंग चार्जेस कंपैरेटिवली कम है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई थिंक अगर आप 100 20 30 बार कैब बुक करवाओगे काफ़ी डिफरेंस वैसे पड़ जाएगा। तो रेदर इफ आपको नहीं मिल रही तो आप करीम यूज़ करो, वहाँ से कैब बुक करो अगर आपको रोड साइड से नहीं मिल रही। एंड अगर करीम नहीं मिल रही तो इन दैट केस लास्ट ऑप्शन इज़ उबर। जो आपकी कैब्स हैं उसमें भी आपका नॉल कार्ड यूज़ होगा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, आप नॉल कार्ड वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, नॉन पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड जो आपका नॉल कार्ड है वो आप रिचार्ज, यू डोंट हैव टू गो टू एनी मेट्रो स्टेशन, आप अपने मोबाइल से ही रिचार्ज कर सकते हो, वहाँ से मेट्रो स्टेशन से भी करवा सकते हो। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मैंने मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर कर दी हैं एंड काफ़ी डिटेल में करी हैं। एंड कुछ भी ऐसा फालतू नहीं है, आई थिंक मैंने क्रक्स जितना है वो, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो सारी कवर कर दी हैं। तो अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो। इफ़ यू लाइक व्हाट आई शेयर्ड तो लाइक करो, share the video if you liked it, and please subscribe to the channel. I hope to bring more videos soon. Thank you so much.